हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वेब फिशिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम वेब फिशिंग के टाइप्स क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेब फिशिंग इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन such as username, password and credit card details by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communications of various forms from social websites, then auction sites, banks, online payment processors or IT administrators are commonly used for this kinds of phishing. Phishing emails may contain links to websites that are infected with malware. Phishing is typically carried out by email spoofing or instant messaging and is often directs user to the enter details at a fake website whose look and feel are almost identical to the legitimate one. So phishing क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि आपके यूज़र नेम्स, आपके पासवर्ड्स या आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, वो अगर किसी को जानने हैं तो वो फिशिंग अटैक के थ्रू हो सकता है। तो ये फिशिंग कैसे होता है कि जो लेजिटिमेट वेबसाइट्स है, जैसे कि आपको कोई ईमेल आता है या फिर आपको मैसेज आता है कि आपको कुछ लॉटरी लगी है, या बैंक के थ्रू कोई आपको डिटेल्स मांगता है कि suppose you are having an account in a bank, then you may get a mail that you have to renew some data and you have to fill the information in the given mail. ऐसे कोई फॉर्म आएगा, या फिर ईमेल स्पूफिंग होता है, या फिर कोई मैसेजेस आते हैं जिस पे लिंक दी गई होती है और वो लिंक का जो अपीयरेंस होता है वो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल साइट है उसके जैसा सेम होगा अपीयरेंस, और उसमें आपको पूरे डिटेल्स भरने होते हैं और बेस्ड ऑन दोज डिटेल्स योर डेटा विल बी हैक्ड बाय द हैकर. Attempt to deal with the growing number of reported phishing incidents include legislation, user training, public awareness and technical security measures. Many websites have now created secondary tools for applications like maps for games, but they should be clearly marked as to who wrote them and you should not use the same passwords anywhere on the internet. So ऐसे होने के लिए आपको पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे रखनी पड़ती है वो आपको बताया जाता है. Phishing is a continual threat that keeps growing to this day. The risk grows even larger in social media such as Facebook, Twitter and MySpace. Hackers commonly use these sites to attack person using these media sites in their workplace, homes or public in order to make personal and security information that can affect the user and the company. Phishing is used to portray trust in the user since the user may not be able to tell that the site or program being visited is not real. So जो साइट बनाई जाती है फिशिंग साइट्स, या फिर जो आपको फॉर्म क्रिएट होता है वो ऐसे तरह से बनाया जाता है कि वो आपको लगेगा कि ये रियल है, सेम साइट का है. तो आपका पहले ट्रस्ट गेन करते हैं ये लोग हैकर्स, एंड देन दे गेट द वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन from you such as password, username, then security codes, credit card numbers. ये सब information आपसे phishing attack through generate की जाएगी. A recent and popular case of phishing is suspected Chinese phishing campaign targeting Gmail accounts of highly ranked officials of the United. So Gmail accounts same phishing attack से कुछ Gmail accounts भी hack हुए हैं. So there are various types of phishing attacks. देन ये कुछ डेटा दिया है कि किस तरह से डेटा फिशिंग अटैक्स हुए थे. डेट दी है यहाँ पे, टारगेट स्टोर्स थे और अटैक डिटेल्स क्या थे. 110 मिलियन कस्टमर्स एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड स्टोलन थ्रू अ फिशिंग अकाउंट ऑफ CEO एंड IT स्क्रूटिनी स्टाफ. सो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह के अटैक्स फिशिंग अटैक्स हुए हैं रियल में. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि फिशिंग के टाइप्स क्या है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स. डिसेप्टिव फिशिंग. द फिशिंग ओरिजिनली रेफर्ड टू एज अकाउंट थेफ्ट यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, बट द मोस्ट कॉमन ब्रॉडकास्ट मेथड टुडे इज अ डिसेप्टिव ईमेल मैसेज. The message about the need to verify account information, system failure requiring users to re-enter their information,
fictitious account charges, undesirable account changes. So ये टाइप के जो डिसेप्टिव फिशिंग होता है उसमें आपको मेल आएगा एक, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, तो ये डिटेल्स फिर से भरो, या फिर सिस्टम फेलियर हो गई है, सिस्टम क्रैश हो गई है, तो हमारा डेटा पूरा चला गया है, वी हैव टू रीजनरेट द डेटा. सो आप ये फॉर्म फिलअप करो जिसमें पूरे डिटेल्स आपको भरने हैं. सो ऐसे काइंड के मेल्स आपको आएंगे जिससे आपका डेटा डिजनरेट हो जाएगा. सो ऐसे टाइप के अटैक को हम डिसेप्टिव फिशिंग बोलते हैं. देन सेकेंड टाइप का अटैक है मालवेयर बेस्ड फिशिंग. It is referred to scams that involves running malicious software on the user PCs. Malware can be introduced as an email attachment, as a downloadable file from a website, or by exploiting known security vulnerabilities. A particular issue for small and medium business who are not always able to keep this software applications up to date. जैसे कि कोई मालवेयर या फिर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा जिसके थ्रू आपका डेटा हैक होगा. तो ये कोई फाइल हो सकती है, कोई डाउनलोडेबल फाइल हो सकती है जो जिस पर आपने अगर क्लिक किया तो आपके डिटेल्स हैक हो सकते हैं. तो ये हो गया मालवेयर बेस्ड फिशिंग. देन नेक्स्ट जो है वो की लॉगर्स एंड स्क्रीन लॉगर्स आर पर्टिकुलर वेराइटीज ऑफ मालवेयर दैट ट्रैक कीबोर्ड इनपुट एंड सेंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द हैकर वाया द इंटरनेट. They can embed themselves into users' browsers as small utility program known as helper objects. So आपके कीबोर्ड में आप कौन से टाइप के पैटर्न्स जनरेट कर रहे हो, पासवर्ड्स क्या टाइप के आपके हैं, उसका स्टडी करने के बाद में डेटा हैक होगा. तो ये हो गया की लॉगर्स एंड स्क्रीन लॉगर्स. देन नेक्स्ट इज सेशन हाईजैकिंग. It describes an attack where users' activities are monitored until they sign in to a target account or transaction and establish their bona fide credentials. At that point, the malicious software takes over and can undertake the unauthorized actions such as transferring funds without the user's knowledge. So यहाँ पे यूज़र को पता नहीं चलेगा, उसका अकाउंट किसी और के कंट्रोल में जाएगा और थ्रू दैट पर्सन डेटा विल बी एक्सेस. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेशन हाईजैकिंग. उसके बाद में है वेब ट्रोजन्स. Pop up invisibly when users are attempting to log in. They collect the user's credentials locally and transmit them to the fishers. So कभी कभी आप कुछ साइट्स ओपन करते हो तो वहाँ पे पॉपअप्स आते हैं और वो पॉपअप्स जो है वो आपका डेटा क्रेडेंशियल्स जो है वो आपके ग्रैब करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ वेब ट्रोजन्स. देन नेक्स्ट इज अ होस्ट फाइल पॉइजनिंग. When a user type a URL to visit a website, it must first translate it into IP address before it is transmitted over the internet. The majority of MSB users PC running a Microsoft operating system first look up these host names in their host file before undertaking a domain name system lookup. By poisoning the host file, hackers have a bogus address transmitted, taking the user to अनविटिंगली टू अ फेक साइट. सो जब आप कोई साइट पे जाते हो तो ओरिजिनल साइट पे जाने की जगह अगर आप कोई सेम दिखने वाली फेक साइट पे जाते हो तो वहाँ से आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है. तो ऐसे टाइप के अटैक्स को हम होस्ट फाइल पॉइजनिंग बोल सकते हैं. उसके बाद में सिस्टम रिकॉन्फिगरेशन अटैक्स. मॉडिफाई सेटिंग्स ऑन अ यूजर्स पीसी फॉर मैलिशियस पर्पज. फॉर एग्जाम्पल URL इन अ फेवरेट फाइल माइट बी मॉडिफाइड टू डायरेक्ट यूजर टू लुक अलाइक वेबसाइट्स. जैसे कि जो URL होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आप टाइप करने जाते हो तो सेम URL जैसा एक URL आएगा और जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप कोई फेक साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. यहाँ पे दिया है bankofabc.com जिसमें अभी बैंक का स्पेलिंग गलत करके सेम टाइप की साइट एक बनाई गई है. तो आप गलती से अगर ये साइट पे क्लिक कर दोगे तो आप फेक साइट पे रिडायरेक्ट होगे जहाँ पे आपको सेम अपीयरेंस मिलेगा और उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा हैक हो सकता है. इसके बाद में डेटा थेफ्ट. अनसिक्योर्ड पीसीज ऑफन कंटेन सबसेट्स ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड elsewhere on a secured servers. Certainly PCs are used to access such servers and can be more easily compromised. So data theft is also a kind of an attack. इसके बाद में DNS बेस्ड फिशिंग. DNS बेस्ड फिशिंग क्या होता है?
Farming is the term given to host file modification or domain name system based phishing. With a farming scheme, hackers tamper with a company's host files or domain name system so that their request for URLs or name service return a bogus address and subsequent communications are directed to a website. So ये हो गया DNS based phishing, उसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं. और कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग क्या होता है? इट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर हैकर्स रिप्लेस पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ लेजिटिमेट साइट विथ फॉल्स कंटेंट डिजाइन टू मिसलीड और मिसडायरेक्ट द यूजर, गिविंग अप देयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द हैकर. सो वेबसाइट का जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसको हैक करके उसका कुछ पार्ट चेंज करके फिर डेटा जो है वो हैक किया जाता है इस कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग में. उसके बाद है Man in the middle phishing attack. Man in the middle phishing attack is a harder to detect than many other forms of attacks. In this attack, hackers position themselves between the user and the legitimate system. They record the information being entered but continue to pass it to the user's transaction are not affected and later they can sell or use the information to get the. जैसे कि 2 पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन वो दोनों में क्या कम्युनिकेशन है वो सिर्फ जज करेगा और वो जो डेटा है वो डेटा स्टोर करके रखेगा और बाद में वो डेटा यूज होगा फॉर मेकिंग आइदर सेलिंग दैट डेटा और फॉर हैकिंग दैट यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन टू हैक द अकाउंट. सो ये है मैन इन द मिडल फिशिंग अटैक. उसके बाद में सर्च इंजिन फिशिंग क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन फिशिंग क्रिएट वेबसाइट्स विथ अट्रैक्टिव sounding offers and more, have them indexed legitimately with search engines. Users find the sites in the normal course of searching for products or services and are fooled into giving up their information. So एक अट्रैक्टिव साइट बनाई जाती है, सेम साइट जैसे सेम ओरिजिनल साइट के लेवल की एक अट्रैक्टिव साइट बनाई जाएगी जिसपे लोग अट्रैक्ट होके लॉग इन करेंगे और उनका ओरिजिनल डेटा जो है वो हैक हो जाएगा. सो ये है सर्च इंजन फिशिंग. सो ये हो गए फिशिंग अटैक क्या होता है. आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फिशिंग अटैक क्या होता है. उसके बाद में टाइप्स ऑफ फिशिंग्स हमने डिस्कस किए. वेब फिशिंग के बहुत सारे टाइप्स है जैसे कि डिसेप्टिव फिशिंग, मालवेयर बेस्ड फिशिंग, की लॉगर्स एंड स्क्रीन लॉगर्स. उसके बाद में हमने डिस्कस किया सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, वेब ट्रोजन्स क्या होता है, होस्ट फाइल पॉइजनिंग, सिस्टम रिकॉन्फिगरेशन अटैक्स, डेटा थेफ्ट. इसके बाद में हमने डिस्कस किया डीएनएस बेस्ड फिशिंग. उसके बाद में हमने डिस्कस किया कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग, देन मैन इन द मिडिल अटैक, सर्च इंजन फिशिंग. सो ये कुछ फिशिंग और फिशिंग के टाइप्स हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक.